Hello everyone, welcome to the channel. So today's video is going to be all about revising the geography. Now we are going to revise whole of the world geography and world geography के साथ साथ मैं आपको physical geography भी revise कराऊंगा and I'll tell you exclusive facts about the Indian geography as well. So this whole session is all about revising geography at the last time. This video is going to be very beneficial for revising the particular subject of world geography as well as the concepts of physical geography. So let us start without wasting any time. We are going to start with the chapter of mountains. Okay, now this Darling Range, this range is situated in southwest Australia. Now regarding Australia, you need to know that the world's largest coral reef, that is Great Barrier Reef, is located in Australia. Now if I am talking about coral reef, this coral reef is also present in India. Gulf of Mannar में ये present है, इसके अलावा लक्षद्वीप में it is also present. Okay, now next is British Columbia Mountains is located in Sea of Mountains in the region surrounding the United Kingdom. Now the highest mountains, it means the mountains having the highest heights are the fold mountains. Also this fold mountain are formed on the convergent plate boundaries. Okay, convergent plate में one plates collided with other and this by this process a mass rises which is known as the fold mountains. Also the fold mountains are the youngest mountains, youngest formed mountains. Okay, now the examples of fold mountains are Rocky. This Rocky mountain is there in the Northern America. आपको ये सारा कुछ ध्यान में रखना है, रिवीजन की क्लास है ये, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो इफ यू इंटेंड टू रिवाइज द ज्योग्राफी इन अ टाइम बाउंड मैनर. Now this Himalayas is located in obviously India, and this Alps is located in Europe. These Andes mountain is located in South America. Okay, now in सबकी location is very much important. ठीक है. Now which is the largest mountain series of the world? This is the Andes mountain and it is located in South America, and it is also the longest mountain range. Now some of the other mountains is Mount Kilimanjaro. This you need to know. Mount Kilimanjaro, it is the tallest mountains in Africa and it is situated in the Tanzania. इसके अलावा if I talk about the Atlas mountains are present in northwestern Africa. ठीक है. सो यहाँ पे आई हैव ट्राइड कि मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूँ. फोर्ड माउंटेन्स अगर आप इतने, आपको जितना मैंने अभी बताया है उतना आपको अगर ध्यान में रहेगा एंड इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर दीज, सो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बना पाओगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज mountain range with length. Okay, now Andes mountain, if I talk about this Andes mountain, this is situated in South America, and in the South America if I talk about the tallest mountain in the Andes is Aconcagua. ठीक है, it is the highest mountain is in Andes. Now if I talk about Rocky, this is situated in North America and Mount Albert is the highest peak. ठीक है, Andes की highest peak is Aconcagua. Now Himalayas is there in India and highest peak is Mount Everest. Also this Mount Everest is located in Nepal. ठीक है. Now next is Great Dividing Range. This is located in Australia and Mount Kosciuszko is the highest peak here. Okay. Now the next is about the Alps. Alps mountain is there in Europe. Okay, and this Alps mountain lies in the northern area of the Mediterranean Sea. Okay, so this is located in north of the Mediterranean Sea. Now the countries where this Alps extend is France, Austria, Germany and Switzerland. ठीक है. इसका निमोनिक आप याद रख सकते हो फैग्स के नाम से, दैट इज फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड. ठीक है. Now these Altai mountains are there in Asia, the region of Central Asia. ठीक है. Alps मैंने अभी आपको बताया, Alps is located in Europe. Appalachian Mountains is in North America. North America से रिगार्डिंग अभी हमने देखा था, Rocky Mountains are also there in North America. इसके अलावा एंडीज जो थे वो साउथ अमेरिका के हाईएस्ट माउंटेन थे.
and Aconcagua was the highest peak in the of the south of the Andes mountain. ठीक है. White Mountains is there in USA. Now this Arakan mountain divides India and Myanmar. ठीक है. Arakan Yoma mountains are there. इसके अलावा if I talk about the Meghalaya plateau, this is an extension of the Deccan Plateau region और the Peninsular Plateau का ये extension है. ठीक है. Peninsular Plateau of South India का extension है हमारा मेघालय Plateau. ठीक है. Now this Black Forest mountain is located in Germany. इसके अलावा Black Forest से which river flows? So river Rhine flows through this Germany, which is where the Black Forest mountain is located. Now अभी हमने देखा था फोल्ड माउंटेन्स के बारे में कि दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन. ठीक है. सो सम ऑफ द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स आर द यूरल माउंटेन्स, अरावली, Appalachian mountain is there in North America, Aravalli is in India, and Ural mountains this is in यूरोप में भी स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो रशिया में ये उरल माउंटेन्स है. ठीक है. नाउ सम ऑफ द यंग फोल्डेड माउंटेन्स आर एंडीज, रॉकी, एल्प्स एंड हिमालयास. ठीक है. ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स आप याद रखना, उरल है, अरावली है एंड एपेलेशियंस. एंड इनका जो मैंने आपको अभी बताया है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनका एरिया क्या है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा एटलस माउंटेन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू एटलस माउंटेन इज़ देयर इन वेस्टर्न अफ्रीका. एंड कौन कौन सा एरिया है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वाला एरिया है. इसके अलावा यहाँ पे मैंने समअप किया है माउंट कुजिस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अभी जो हमने देखी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज़ देयर इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. एंड माउंट कुजिस्को इज़ द हाईएस्ट पीक. मैकक्लिनी इज़ इन नॉर्थ अमेरिका के अलग माउंटेन्स हमने देखे. अपालेचियंस भी हमारा नॉर्थ अमेरिका में है एंड रॉकी माउंटेन्स इज ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका. माउंट एल्ब्रस इज़ इन यूरोप, माउंट किलिमंजारो इज़ इन अफ्रीका, होगार इज़ इन अल्जीरिया, स्टैनली इज़ इन युगांडा एंड तोबुकल इज़ इन मोरक्को. ठीक है. ये कुछ हमारे अफ्रीकन माउंटेन्स हैं विच यू नीड टू नो. होगार इज़ देयर इन अल्जीरिया, स्टैनली इज़ देयर इन युगांडा एंड तोबुकल इज़ देयर इन Morocco. Now Vindhyas, if I talk about Vindhyas, so Vindhyas is a type of residual mountain. On the other hand, block mountains की अगर मैं बात करूँ तो Vosges is a example of block mountain. Now other examples of block mountain are Satpura, Vosges is in France, Sierra Nevada is in USA and Harz mountain is there in Germany. ठीक है. Now you need to know कि block mountain are old mountain. ठीक है. Now Aravallis and Vindhyas के रिस्पेक्ट में बस आप एक बात ध्यान रखना कि Aravallis are the old fold mountains. On the other hand, Vindhyas is an example of residual mountain. And some of the examples of block mountain, so Satpura is the example of block mountain. Vosges जो है वो फ्रांस में है, Sierra Nevada is in USA and Harz is there in Germany. ठीक है. Now the mountains which separate Spain and France, example क्या है उसका? तो Pyrenees mountain जो है they separate Spain and France. Also if I talk about Indian context में बात करूँ तो नल्लामला hills जो हैं, ठीक है, दिस नल्लामला हिल्स फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्लेट्यू. सो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं. नाउ द एवरेज एलिवेशन ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू इज़ 5 किलोमीटर्स. नाउ व्हाट इज़ एन प्लेट्यू? इट इज़ अ फ्लैट टॉप माउंटेन. ठीक है. इट इज़ फ्लैट ऑन दी 3 साइड्स. ठीक है. एंड द जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ प्लेट्यू इज़ वेरी मच ओल्डर एज कंपेयर टू द फोल्ड माउंटेन्स. नाउ एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू. ठीक है. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया. ओके. नाउ Patagonia plateau is there in South America and it is also called storehouse of mineral. So यहाँ पे आपको पता होना चाहिए Patagonia plateau is there in
South America. Now Pamir Plateau is there in Central Asia and it is also known as the roof of the world. Now नेक्स्ट है हमारा टेलीग्राफिक प्लेट्यू, दिस इज़ देयर इन नॉर्थ अटलांटिक रिज। इसके बाद अगर मैं वैली की बात करूं तो दो वैली हैं यहाँ पे, डेथ वैली यूएसए में है एंड वैली ऑफ किंग इज़ देयर इन इजिप्ट। इसके अलावा नाउ डेजर्ट की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट डेजर्ट्स दैट आर देयर। नाउ most of the hot deserts of the world are located on the western margin of the continent, ठीक है। most of the desert are there in the western margin of the continent between 11 degree to 30 degree north and south latitude, ठीक है। so क्यों होते हैं ये, because यहाँ पे ओशियनिक करंट का भी एक रूल फॉलो होता है। इसके अलावा जो एयर मासेज है एंड एयर का फ्लो होता है जो, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न टू दैट, ठीक है। नाउ बिगेस्ट डेजर्ट की मैं बात करूं, सो सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट इज़ द थार डेजर्ट एंड इट इज़ इन इंडिया। नेक्स्ट इज टकला मकान डेजर्ट इज़ इन चाइना। सोनोरन डेजर्ट इज़ देयर इन यूएसए। नाउ काराकुम डेजर्ट इज़ देयर इन तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। गिब्सन डेजर्ट इज़ देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया। सो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए डेजर्ट्स के बारे में। टकला मकान इन चाइना, सोनोरन डेजर्ट इन यूएसए, काराकुम इन तुर्कमेनिस्तान या कजाकिस्तान, गिब्सन डेजर्ट इज़ देयर इन ऑस्ट्रेलिया एंड गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिफरेंट डेजर्ट्स बेसिस ऑन देयर साइज, तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट एंड इट इज़ इन अफ्रीका। इसके अलावा अरेबियन डेजर्ट इज़ इन द एरिया ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। गोबी डेजर्ट इज़ देयर इन मंगोलिया एंड चाइना एंड ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ पे एक नया डेजर्ट आ गया, दिस इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ अटाकामा डेजर्ट, दिस इज़ अ न्यू डेजर्ट। तो डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, इट इज़ द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न चाइल्ड एंड पेरू, ठीक है, एंड इट हैज़ ऑल्सो हैज़ द रिच रिजर्व्स ऑफ नाइट्रेट, ठीक है। सो दिस अटाकामा डेजर्ट इज़ इन साउथ अमेरिका एंड नॉर्दर्न चाइल्ड एंड पेरू में है ये, एंड इट हैज़ रिच रिजर्व्स ऑफ नाइट्रेट। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द टेम्परेट डेजर्ट, सो यहाँ पे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट का आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। सो ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जहाँ पे सन की जो लाइट होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है एंड यहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं बिकॉज देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। सो दिस रीजन कंटिन्यूसली रिसीव्स रेनफॉल, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड फ्रॉम 0 to 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के एरिया में जो भी डेजर्ट्स होते हैं या जो भी एरिया होता है दैट इज़ नोन एज द ट्रॉपिकल एरिया। नाउ 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से अगर मैं बात करूँ 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में, सो दिस देयर इज टेम्परेट डेजर्ट, ठीक है। सो यही यहाँ पे बताया है, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड। सो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस आर गोबी डेजर्ट इज़ इन मंगोलिया, ठीक है। लद्दाख डेजर्ट हमारे इंडिया में है। पैटागोनिया डेजर्ट इज़ देयर इन अर्जेंटीना, ठीक है। सो यहाँ पे एटाकामा ध्यान रखना, एटाकामा साउथ अमेरिका में है एंड नॉर्दर्न चाइल्ड एंड पेरू में ये एटाकामा डेजर्ट है, वेयर एज पैटागोनिया डेजर्ट इज़ देयर इन अर्जेंटीना। नेक्स्ट इज कालाहारी डेजर्ट। सो दिस कालाहारी डेजर्ट दिस इज़ देयर इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में भी कौन सी कंट्री, तो बोत्सवाना एंड नमीबिया में है ये, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज़ इन द एरिया ऑफ टेम्परेट रीजन, ठीक है। नाउ ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज़ देयर इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द ग्रासलैंड। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं एंड टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। सो ट्रॉपिकल वही 0 डिग्री to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में होते हैं एंड ट्रॉपिकल इज़ अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 60 डिग्री एंड नॉर्थ एंड साउथ, ओके। नाउ स्टेपीज इज़ देयर इन यूरोप, यूरोप या सेंट्रल एशिया के रीजन में जो डेजर्ट्स ग्रासलैंड हैं वो हमारे स्टेपीज होते हैं। सेंट्रल रशिया नहीं, सेंट्रल एशिया। नाउ नेक्स्ट है प्रेरीज आर इन यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका। वेल्ड इज़ देयर इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, कैंपोस आर दी ट्रॉपिकल डेजर्ट,
ठीक है। अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेजन इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो अमेजन का सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो ब्राज़ील में ही है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ग्रासलैंड होगा वो ट्रॉपिकल होगा। दैट इज़ वाई मैंने आपको अभी बताया था द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ठीक है। सो कैंपोस इज़ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ब्राज़ील। पाम्पास जो है वो जनरली साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को बोला जाता है इन द एरिया अराउंड अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड ब्राज़ील। सवाना इज़ द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका। सेल्वास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अमेजन का एरिया है। सो इस एरिया में ये है। नौ यहाँ पे मैंने अलग से भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है अबाउट द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सो लाउनोस, काम्पोस, ठीक है। लाउनोस हमारा कोलंबिया एंड अर्जेंटीना में है, कैंपोस जो है वो ब्राज़ील के एरिया में है, एंड सवाना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड, तो प्रेरीज, पैम्पास, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज हमारा सेंट्रल एशिया में था, वेल्ड जो था हमारा साउथ अफ्रीका में था, एंड डाउन्स हमारा जो था वो ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है। नाउ सेल्वास आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन द एरियाज अमेजन बेसिन के एरिया में। इसके अलावा पुस्ताज इज द ग्रासलैंड इन हंगरी, ठीक है। नाउ अब आ गया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स। नाउ लेट अस सी। नाउ बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, दिस ये जो है मिसिसिपी एंड कोलोराडो है। ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, सो जो लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है वो हमारे कनाडा एंड यूएसए की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्मॉलेस्ट साउथ एशियन कंट्री कौन सी है, ये मालदीव्स है। नाउ द कंट्रीज़ विच आर पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ये है हमारी सऊदी अरब, येमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर एंड कुवैत, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला में बस ये ध्यान रखना ईरान एंड इराक नहीं है, इसके अलावा सारी जो हैं कंट्रीज़ जो अरब रीजन में है वो सारी इंक्लूड होंगी, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, कनाडा की है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, सो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया में गुजरात की है। नाउ नेक्स्ट इज डेड सी इज़ लैंडलॉक्ड, ठीक है। डेड सी एक लैंडलॉक्ड सी है एंड इट इज़ इन द रीजन ऑफ इज़राइल, वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन, ठीक है। नाउ इज़राइल शेयर द बॉर्डर्स विथ मेडिटेरेनियन सी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट, इज़राइल की जो बॉर्डर लगती है इजिप्ट के साथ, यही इसी एरिया में राफा क्रॉसिंग है, सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़राइल शेयर्स द बाउंड्री, डायरेक्ट बाउंड्री ईरान या इराक के साथ शेयर नहीं करता है इज़राइल, ये आपको पता होना चाहिए। सो इज़राइल शेयर्स बाउंड्री विथ मेडिटेरेनियन सी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। Now if I talk about the area of Horn of Peninsula, Horn of Africa और सोमालिया पेनिनसुला, तो सोमालिया, जिबूती, रितेरिया एंड सोमालिया, ये सारा का सारा रीजन रेड सी के सराउंडिंग है। अगर मैं रेड सी की बात करूं तो ये साल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसका निमोनिक बता देता हूं कि विच आर द कंट्रीज़ विच आर बॉर्डरिंग द रेड सी। तो वाई सीड्स के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। वाई स्टैंड्स फॉर यमन, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया, ई स्टैंड्स फॉर इथेरिया, डी स्टैंड्स फॉर जिबूती, ठीक है। एंड एक ई एंड एक यस, एस से क्या स्टैंड करता है, विच बॉर्डर रेड सी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सो विच ऑफ द कंट्रीज बॉर्डर्स द स्कैंडिनेवियन, विच कंट्रीज आर नोन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। सो स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आइसलैंड, these all are the Scandinavian countries. Now next is अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बॉर्डर कौन कौन से कंट्री के साथ है हमारी, सो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर्स है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है। इराक के साथ बॉर्डर नहीं है, ये ध्यान रखना। एंड सेंट्रल एशियन कंट्री में कज़ाकिस्तान ऑप्शन में हो सकता है, उसके साथ भी बॉर्डर शेयर नहीं है। तो बॉर्डर शेयर है किसके साथ, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इधर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है। ना म्यांमार से कौन कौन से कंट्री की बॉर्डर है, सो म्यांमार की बॉर्डर है हमारे इंडिया से, चाइना, थाईलैंड, लाओस एंड बांग्लादेश।
नाउ मेडिटेरेनियन सी कि बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ नहीं है, यहाँ पे अगर आप ये ध्यान दे देते हो कि कौन सी कंट्री के साथ नहीं है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो जॉर्डन एंड इराक के साथ मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो करता किन के साथ है, ये हमारी 14 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ मेडिटेरेनियन सी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज सिंपल एज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे 14 कंट्रीज़ याद करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट पास की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हम याद कर सकते हैं जिसके साथ बॉर्डर नहीं है। तो जॉर्डन एंड इराक के साथ बॉर्डर नहीं है। ठीक है, आपको ईजी होगा ऐसे याद करने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूक्रेन। देखो यहाँ पे मैंने जो कंट्रीज़ एंड बॉर्डर्स लिया है ना, ये सारे का सारा करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है। ठीक है, सो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कोई स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो ये शेयर करता है बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा यूक्रेन बॉर्डर शेयर करता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी है। सो यहाँ पे मैं कुछ कंट्रीज़ का नाम बता रहा हूँ। देखो इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप करने वाला नहीं है। ठीक है, सो अगर आप स्किप करोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे छोड़ दोगे। तो ये बहुत मैंने प्रिसाइसली डॉक्यूमेंट बनाया है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हो, आके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताओगे तो टेलीग्राम में मैं ये आपको पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, सो लैंडलॉक कंट्री कौन सी है हमारी, अफगानिस्तान इज़ लैंडलॉक्ड, लाओस इज़ लैंडलॉक्ड, लग्जमबर्ग, चैड, नेपाल, भूटान, बोलीविया, हंगरी एंड स्विट्ज़रलैंड। देखो नेपाल भूटान तो आप समझ जाओगे कि ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ आप ये कंफ्यूज मत होना कि इसकी बॉर्डर इंडियन ओशन के साथ लगती होगी। ठीक है, लाओस इज़ एन साउथ एशियन कंट्री। ठीक है, लाओस इज़ अ साउथ एशियन कंट्री। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि हो सकता है ये हमारी जो है इसकी बॉर्डर पैसिफिक ओशन के साथ हो, बट ये नहीं है, ये याद आप ध्यान रखेंगे। चैड इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, सो आपको यहाँ से भी आइडिया लग सकता है। खैर कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं बट ये मैंने कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ ली हैं। ठीक है, लाओस, चैड, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच डज़ नॉट हैव एनी लैंडलॉक कंट्रीज़। ठीक है, या तो कंट्रीज़ जो वेस्टर्न मार्जिन पे है वो पैसिफिक ओशन से इनकी बॉर्डर्स है, या अगर मैं ईस्टर्न मार्जिन की बात करूँ तो उनकी अटलांटिक ओशन से बॉर्डर है। ठीक है, नाउ अफ्रीका में एक और कंट्री है दैट इज साउथ सूडान, जो कि लैंडलॉक्ड है, एंड यहाँ से वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल रिवर, जो कि नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल एशिया में जाएं तो आपको ये तो बट ऑब्वियस है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये भी हमारे लैंडलॉक्ड है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो अर्मेनिया, बोत्सवाना एंड इथोपिया, दीज आर ऑल्सो लैंडलॉक्ड। ठीक है, नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लाइंस की हम देख लेते हैं। नाउ रैडक्लिफ लाइन इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Maginot line is the international boundary between France and Germany. Heidenberg line is the boundary between Belgium and Germany. Durand line is the border between India and Afghanistan. ठीक है, इसके अलावा मैकमोहन लाइन is the international line between India and China. ठीक है, इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट 8 डिग्री लाइन, या सॉरी नॉट 8 डिग्री, 8th पैरेलल लाइन, सो दिस इज द international boundary between North Korea and South Korea. ठीक है, now Rio Grande River, it forms the international boundary between USA and Mexico. Rhine River, it forms the international boundary between France and Germany. Now next important thing is about Victoria Lake. So world second largest freshwater lake जो है वो विक्टोरिया लेक है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट या फर्स्ट नंबर पे जो फ्रेश वाटर लेक आती है दैट इज़ बैकाल लेक। ठीक है, नो दिस विक्टोरिया लेक के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 3 कंट्रीज़ में है, दैट इज़ तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। इन तीनों कंट्रीज़ की ये इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है। ठीक है, सो दिस लेक विक्टोरिया फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया एंड केनिया तंजानिया। 38th parallel is North Korea, South Korea. Alpine line is between France and Italy. ठीक ना,
यहाँ पे मैग्नीगॉट लाइन आपको याद रखनी है, विच फॉर्म्स द मैगिनॉट लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस जर्मनी एंड दुरांत यहाँ पे हिडेनबर्ग बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी। नाउ कैपिटल्स देख लो कुछ जो न्यूज़ में रही हैं। युगांडा की कैपिटल कंपाला है, रवांडा की किगाली, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की किंशासा, सूडान की खार्तूम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, यहाँ पे कज़ाकिस्तान भी एक नोट कर लो, कज़ाकिस्तान की अस्ताना है। एंड वाई बता रहा हूँ मैं ये कज़ाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे SCO की समिट हुई है 2024 में, ठीक है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तजाकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, क्वींसलैंड का ब्रिस्बेन, विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया की मेलबर्न है। एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज अ प्रोविंस जिसकी कैपिटल हमारी पर्थ है ना। बाकू अजरबैजान, कैस्पियन सी से इसकी बॉर्डर लगती है। एंड अगर मैं आपको ये बात बताऊं कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो आप इसको तारीख निमोनिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। T stands for तुर्कमेनिस्तान, A stands for अजरबैजान, R stands for रशिया, ठीक है, I stands for ईरान एंड K stands for कज़ाकिस्तान, ठीक है। अभी नॉर्थ ऑफ टर्की कि हमारा ब्लैक सी है। टर्की इज सिचुएटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, एंड दिस मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। नाउ कैस्पियन सी, यहाँ पे तारीख से आप याद रख सकते हो। ऑल्सो ये ध्यान रखना, वोल्गा विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, इट ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी, ठीक है। तारीख मैंने अभी आपको बता दिया, सो यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया हुआ है। आई होप क्या ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज अरेल सी जो है, दैट इज़ बिटवीन कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इफ़ आई टॉक अबाउट वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे वेस्ट एंड ईस्ट ओरिएंटेशन की मैं बात करूँ तो मेडिटेरेनियन सी हमारा वेस्टर्न मोस्ट एरिया में है, देन हमारा ब्लैक सी है, देन कैस्पियन सी है, एंड हमारे ईस्टर्न मोस्ट इज़ अरेल सी। अरेल सी किस में, तो कज़ाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अब सारगासो सी ये कहाँ पे है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन नियर अंटार्कटिका, ठीक है। मरीन वेजिटेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत मरीन वेजिटेशन होती है। वाई, बिकॉज इट इज़ देयर ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड करंट, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जहाँ पे भी हॉट एंड कोल्ड करंट है वहाँ पे लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं, ठीक है। हॉट करंट कौन सा है यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी में, ये है हमारा गल्फ स्ट्रीम, जिसको कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। एंड कोल्ड करंट हमारा कैनरी करंट है, जो कि वेस्टर्न पार्ट में है सरगासो सी के। तो ये गल्फ स्ट्रीम दैट इज़ हॉट करंट एंड दिस कैनरी करंट विच इज़ एन कोल्ड करंट, ये दोनों के कन्वर्जेंस में हमारा सरगासो सी आता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे मरीन वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ त्रिहेनियन सी, ये हमारा इटली, सिसिली, सार्डिना एंड कॉर्सिका, मेनली द पोर्शन सराउंडिंग इटली, यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ जिसकी बॉर्डर लगती है हमारे मेडिटेरेनियन सी से। सो मेडिटेरेनियन सी हमने देखा कि मेडिटेरेनियन सी की बॉर्डर इजराइल वगैरह से लगती है। तो ऑब्वियसली अगर आप अपने दिमाग में मैप बनाओगे तो नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं सच एज इजिप्ट है हमारी, ठीक है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वही तो बॉर्डर शेयर करेंगी ना। तो देखो यहाँ पे अल्जीरिया है, मोरक्को है, टूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ठीक है। ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं हमारे मेडिटेरेनियन सी से। और रेड सी इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्जियल ट्रॉ, और एक्जियल ट्रॉ का एक और एग्जांपल श्रीलंका भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसको कि ये भी बोल सकते हैं हम, इट इज़ बेस्ड ऑन रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। अगर आपको ड्रेनेज पैटर्न समझना है क्या है, तो आप जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, और अगर आप शॉर्ट्स में मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स में जाओगे तो फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने, वो वीडियो नहीं है एक्चुअली, वो शॉर्ट वीडियो है। within 60 seconds I have explained different type of drainage pattern, that is the dendritic, radial, trellis, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और मेडिटेरेनियन सी डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ लेबनान एंड सीरिया, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। 2 कंट्रीज़ मैंने और बता दी यहाँ पे आपको। नाउ बाल्टिक सी 9 कंट्रीज से बॉर्डर करता है, दैट इज़ डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन।
एक चीज़ ध्यान रख लेना, नॉर्वे इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन बाल्टिक सी। नाउ ओशन करंट, दो टाइप के ओशन करंट होते हैं, एक तो कोल्ड करंट होता है, एक हॉट करंट होता है। अगर मैं हॉट करंट की बात करूं तो हॉट करंट के नाम याद रख लो, इसके अलावा जितने भी होंगे वो कोल्ड करंट हो गए। सबसे पहले तो अगहुलास करंट, ये हमारा इंडियन ओशन में है, ये एक हॉट करंट है या एक वार्म करंट है, हॉट बोलना सही नहीं होगा, वार्म करंट बोलते हैं इसको। इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो मैंने अभी बताया, जिसका अदर नाम गल्फ स्ट्रीम भी है, ये भी एक वार्म करंट है। इसके अलावा ब्राज़ील करंट भी एक वार्म करंट है। कुरोशियो करंट जो कि जापान में है, ये भी एक वार्म करंट है, ठीक है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म करंट है। एंड नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये भी एक वार्म करंट है। सो वार्म करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इक्वेटर से मूव करता है टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे वार्म करंट मेजोरिटी जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बता दिए हैं, जो भी रिमेनिंग होगा वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगुलहास करंट इज़ एन इंडियन ओशन, एक वार्म करंट है। बेनीलुगा करंट ऑब्वियसली मैंने बताया कोल्ड करंट है और साउथ अटलांटिक ओशन में है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन का अदर नेम है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। नाउ ओशन सैलिनिटी कौन से जगह पे मैक्सिमम है, तो दिस ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। नाउ ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल करंट कौन सा है, एक वार्म करंट है, ठीक है। सो ईस्टवर्ड फ्लो जो इक्वेटोरियल करंट का है वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेटोरियल करंट मर्ज होता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट सैलिनिटी, व्हाट इज सैलिनिटी, तो हेलोक्लाइन जो होता है वो वाटर सैलिनिटी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये होता है कि हम जितनी डेप्थ में जाते हैं ओशन में, द सैलिनिटी टेंड्स टू डिक्रीज। नाउ हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ है, तो ये डेड सी में है। नाउ लेट अस सी समथिंग अबाउट ट्रेंचेस। इंडियन ओशन में दो ट्रेंचेस हैं, दैट इज सुंडा या जावा ट्रेंच एंड डायमेंशिया ट्रेंच। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। क्यूरिल ट्रेंच एंड जापान ट्रेंच, ये सारे नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। साउथ पैसिफिक ओशन में है अटाकामा, टोंगा एंड कर्माडेक, ठीक है। अटलांटिक ओशन में पुर्तो रिको ट्रेंच है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट रिवर्स, वोल्गा रिवर जो है वो ड्रेन होती है कैस्पियन सी में। जाम्बेजी रिवर ये अफ्रीका की रिवर है एंड इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू इंडियन ओशन। थीम्स जो है इट डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू नॉर्दर्न सी। नेक्स्ट इसके अलावा अमेजन रिवर जो है दैट इज़ लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया। नाइल जो है हमारी लार्जेस्ट रिवर है, बट अगर मैं ड्रेनेज एरिया के हिसाब से बात करूँ तो अमेजन रिवर जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट रिवर। नेक्स्ट है जायरे रिवर है, इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे जायरे रिवर है दैट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। इंडिया में एक माही रिवर है, इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। कॉन्गो बेसिन कौन कौन सी कंट्री है, तो कैमरून है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, कॉन्गो, फिर इक्वेटोरियल गिनी एंड गेबन। नाइल रिवर, तो नाइल रिवर कौन कौन से इसका ड्रेनेज कहाँ है, बुरुंडी, रवांडा, DRC, इथोपिया, सूडान, साउथ सूडान, तंजानिया, केनिया, इरिट्रिया, युगांडा एंड इजिप्ट। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगसी रिवर, डनाइपर रिवर एंड डेनूबे रिवर, ये दोनों के दोनों ब्लैक सी में फॉल करता है, ठीक है। ना ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्री आप कैसे याद रख सकते हो, तो इसका एक निमोनिक है टी एंड बर्गर, ठीक है। टी से हमारा टर्की है, बी से हमारा बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से ग्रीस, बर्गर BURGER, तो बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, देन आर से हमारा रशिया, ठीक है। BUR, यस रशिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइन रिवर जो है वो नॉर्थ सी में है एंड इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में इंडिया में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, दैट इज़ नर्मदा, तापी, ये दोनों की दोनों जो हैं वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। नाउ श्रीलंका इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज,
मेकोंग रिवर की मैं बात करूं तो ये सिचुएटेड है हमारे म्यांमार, चाइना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम में। डायरेक्टली फॉल करती है इनटू साउथ चाइना सी एंड इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन म्यांमार, लाओस और लाओस, थाईलैंड। ठीक है, मेकोंग रिवर इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नोबी एंड कांतो प्लेन्स, दिज आर द एरियाज ऑफ जापान। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट इन एरिया तो न्यूजीलैंड, साउथ आइलैंड जो है इनका एरिया लार्जेस्ट है। और लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड दिस इज ग्रीनलैंड एंड ये पार्ट है हमारे डेनमार्क का। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज न्यू गिनिया। ठीक है, न्यू गियाना। नाउ नेक्स्ट है बॉर्नियो जो है, दैट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड। इसके अलावा 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बॉर्नियो के आइलैंड हैं, दैट इज़ इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनई। रिसेंटली इंडोनेशिया की नई कैपिटल कालीमतान यहाँ पे डेजिग्नेट की गई है ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल्स। गैलापागोस आइलैंड इक्वेडर में है एंड दीज आइलैंड्स आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ आइलैंड्स ऑफ जापान की, तो नॉर्दर्न मोस्ट हक्काइडो है, हक्काइडो के बाद हमारा होन्शु है, दिस इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, देन शिकोकू एंड लास्ट हमारा क्यूशू। ग्रेनेडा ये हमारा कैरेबियन सी में है। इंडोनेशिया इज़ द कंट्री हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड। नाउ आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन की बात करूं तो सुमात्रा जो है वेस्टर्न मोस्ट है, देन हमारा जावा, बाली एंड देन लॉम्बोक जो है वो ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड है रशिया हमारे इंडोनेशिया का। नाउ नेक्स्ट इज कैरेबियन आइलैंड which are in the Atlantic Ocean constitutes of Grenada, Montserrat and Anguilla. Let us now have a look on the lakes and waterfalls. Now the lake Fagubin is in Mali and it has been dried up and it has turned into a desert. So Lake Fagubin is in Mali. Lake Titicaca is in Bolivia and Peru. Lake Balkhash is in Kazakhstan. Lake Erie is in USA and Canada and Lake Baikal is in Russia. Now Niagara Falls is in North America and it is located between Lake Ontario and Lake Erie. Now Lake Tanganyika is the second deepest lake and the deepest lake is Lake Baikal. ठीक है, also Lake Tanganyika is the longest freshwater lake. Now Great Lakes of USA, if I talk about east to west orientation, so easternmost is the Ontario, then is Erie, Huron, Michigan and then Superior, Lake Superior. Next in the line is descending order of the area. So the largest freshwater lake is Lake Superior, then is Lake Victoria, then is Lake Baikal and then is Lake Great Bear. Now Lake Baikal is the oldest and deepest lake. Finland is known as the Lake of Garden of Lakes. Lake Urmia is in Iran. Lake Reindeer is in Canada. Lake Victoria is there on river Zambezi and the countries which the Lake Victoria cover is Tanzania, Uganda and Kenya. Lake Malawi is in Tanzania, Malawi and Mozambique. ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखना, लेक विक्टोरिया इज़ इन तंजानिया, युगांडा एंड केनिया, वेयर एज लेक मलावी इज़ इन तंजानिया, मलावी एंड मोजाम्बिक. लेक मैरिसियाबो इज़ इन वेनेजुएला एंड लेक ओनेगा इज़ इन कनाडा. नेक्स्ट है हमारा, नाउ दिस इज़ द स्ट्रेट्स. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मलाका स्ट्रेट, इंडोनेशिया एंड मलेशिया में ये है मलाका स्ट्रेट एंड इट कनेक्ट्स फ्रॉम इंडियन ओशन टू द China Sea. The Lake of Gibraltar it separates Europe from Africa and it also connects Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea. Now Strait of Hormuz is there in Persian Gulf and Gulf of Oman को ये connect करती है. Bering Strait it connects Arctic and Pacific Ocean and it separates Asia from North America. 10-degree channel it separates Andaman from Nicobar. Lake Strait of Dover is there in UK and France. Park Bay is there in Gulf of Mannar and Bay of Bengal. Persian Gulf की जो बॉर्डर्स हैं वो ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड इराक में हैं एंड आपको ये पता होना चाहिए कि ओमान डज नॉट फॉर्म बॉर्डर विद द पर्सियन गल्फ. नाउ बाब अल मंडेब
is there between Red Sea and the Indian Ocean. Now if I talk about canal, the Suez Canal, it connects Red Sea with the Mediterranean Sea, and it is also the largest navigational canal. Now Panama Canal, it connects Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Kiel Canal is there in Elbe estuary and Baltic Sea को ये connect करती है. Suez Canal is there in USA and it connects the Lake Superior and Lake Huron. Panama Canal Atlantic Ocean and Pacific Ocean को connect करती है. Suez Canal connects Mediterranean Sea with the Red Sea. Now if I talk about the dams, Kariba Dam is on Zambezi River, and Zambezi River forms the border between Zambezi and Zimbabwe. Also this Zambezi River directly drains into the Indian Ocean. Now Aswan Dam is there in Egypt. Next है हमारा, if I talk about the coral reefs now, Great Barrier Reef is in Australia and it is there in the northeastern coast of Australia. Length is 2300 kilometer and Pacific Ocean में ये Great Barrier Reef है. Now if I talk about India, तो इंडिया के लक्षद्वीप में ये है. Then अंडमान एंड निकोबार में भी यहाँ पे कोरल रीफ्स हैं. इसके अलावा स्वराज आइलैंड है इंडिया में, इन दी अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे भी ये हमारी कोरल रीफ्स हैं. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कोरल्स, तो कोरल्स को फ्रेश वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. इसके अलावा 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए एंड शैलो वाटर्स होने चाहिए. दीज आर सम ऑफ दी कंडीशन. इसके अलावा सनलाइट अवेलेबल होना चाहिए फॉर द कोरल्स टू ग्रो. ठीक है. एंड ऑल्सो देयर इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन कोरल्स एंड जूजैंथेलिन. नाउ जूजैंथेलिन प्रोड्यूस द फूड फॉर कोरल्स एंड कोरल्स में जूजैंथेली रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू नो. नाउ एदुदू atoll is there in Indian Ocean. Now if I talk about the layers of the atmosphere, troposphere is the lowest level, at the lowest level, then there is stratosphere, then there is mesosphere, then there is ionosphere or thermosphere. Now next in the line is stratosphere में आपका ओजोन मिलता है. Now ozone is O3 and it is both beneficial as well as harmful. Now this ozone is beneficial at the stratosphere level as it traps the UV rays of the sunlight. इसके अलावा ozone at the tropospheric level is not good because it is an pollutant. ठीक है. इसके अलावा मेसोस्फीयर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. ठीक है. Now average height of troposphere is 12 kilometer and most weather activity takes place in troposphere. Also troposphere में क्या होता है कि troposphere में हमारे jets, flights, ये सारे के सारे हमारे troposphere में ही उड़ पाते हैं. Now ozone it lies in stratosphere. जो range है ozone की ये है 15 to 20 kilometer and this ozone protects from UV rays of the sun. Now ionosphere is also used for telecommunication because the radio waves जो हैं हमारी ये ट्रैवल करती हैं ionosphere में. Next है if I talk about insolation. Now albedo, the basic outline of insolation lies in albedo. Albedo मतलब क्या? The reflecting power. अभी हाईएस्ट albedo का क्या होता है, मतलब हाईएस्ट albedo कहाँ पे मिलता है हमारा? ये हमारा स्नो कवर्ड माउंटेन्स, क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. सो एल्बिडो इज़ द रिफ्लेक्टिंग पावर. ठीक है. जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं वो वाइट होते हैं इन कलर एंड वी नो वाइट इज़ बेस्ट फॉर रिफ्लेक्शन. इसके अलावा अगर कोई चीज़ ब्लैक कलर में है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर रिफ्लेक्शन बिकॉज ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा लाइट को. ना हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है अर्थ पे? तो वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे होता है, इक्वेटर पे नहीं होता है. क्यों नहीं इक्वेटर पे होता है? बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री. ठीक है. तो जो एक्सियल टिल्ट है इक्वेटर का, तो वो 0 डिग्री में डायरेक्ट सनलाइट्स नहीं पड़ती हैं, जबकि डायरेक्ट सनलाइट कहाँ पड़ती है? थोड़ा सा ऊपर, दैट इज़ 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे
लाइट्स जो रेज ऑफ द सन है दैट हिट्स डायरेक्टली. नाउ क्लियर नाइट्स एंड कूलर एंड आर कूलर देन क्लाउडी स्काइज. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रेडिएशन. नाउ दिस इज द साइक्लोन. साइक्लोन में भी दो टाइप के साइक्लोन होते हैं. एक हमारा होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक हमारा होता है टेम्परेट साइक्लोन. दिस टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है. टेम्परेट साइक्लोन दिस ऑकर्स ओनली ऑन लैंड. ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा लैंड एंड सी दोनों पे बन सकता है. ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई होती है जिसका टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, आई इज़ वार्मर, ऐसा होता है ना साइक्लोन. तो दिस सेंटर इज़ नोन एज आई, जहाँ पे टेम्परेचर्स आर वार्मर एंड काम एयर होती है यहाँ पे. ठीक है, एंड इस आई के जैसे ही बाहर हम इस एरिया में जाएंगे देन बहुत विग्रस जो हैं वो विंड्स यहाँ पे होती हैं. ठीक है, सो ये दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस हमारा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन का. ऑल्सो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स. अब कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स इज़ रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो कोरियोलिस फोर्स जो होती है इक्वेटर पे वो ज़ीरो होती है. दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होते. तो थोड़ा सा नॉर्थ एंड साउथ अगर जाएंगे जहाँ पे कोरियोलिस फोर्स है वहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होते हैं. तो इससे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कंडीशन होते हैं या फैक्टर्स जिस पे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन डिपेंड करता है उसमें कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. हाँ, द नेम ऑफ द साइक्लोन्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं. तो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को विली विली बोलते हैं. हरिकेन्स को यूएसए हरिकेन्स जो इज़ अ टाइप ऑफ साइक्लोन जिसको यूएसए में बोला जाता है. चाइना में साइक्लोन्स को टाइफून बोला जाता है. इंडिया में भी साइक्लोन बोला जाता है. फिलीपींस में बागियो बोला जाता है. जापान में ताइफू बोला जाता है. नो सडन फॉल इन बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या? ह्यूमिडिटी बताता है हमें. द ह्यूमिडिटी कंटेंट इन दी एटमोसफियर इज शोन बाय बैरोमीटर. सो जैसे ही बैरोमीटर सडनली फॉल करेगा इट मीन्स स्टॉर्मी वेदर इज अपकमिंग. नो ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो ड्यू इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स. वाई? बिकॉज द क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन. सो ड्यू फॉर्मेशन के लिए क्लियर एंड काम नाइट ज़रूरी होती है. सो क्लाउडी नाइट्स पे ड्यू फॉर्म नहीं होती है. नाउ ह्यूमिडिटी इज रिजल्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन दी एयर. ठीक है. नाउ क्लाउड्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाउड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कंडेंसेशन. जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई फॉर्म होता है एंड वहाँ पे फिर क्लाउड्स जो हैं फॉर्म होते हैं विच अल्टीमेटली कंडेंस होते हैं एंड देन वो रेनफॉल क्रिएट करते हैं. सो वेरियस लेवल जैसे लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर मैंने आपको बताया कि लोएस्ट लेवल पे ट्रोपोस्फेयर होते हैं एंड एट द अपर मोस्ट लेवल देयर इज़ आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. ऑन द सेम प्रेटेक्स्ट क्लाउड्स पे भी लेवल होते हैं. लोएस्ट लेवल ऑफ क्लाउड्स जो होते हैं वो स्ट्रेटस होते हैं. देन फिर आता है निम्बस एंड निम्बस के ऊपर वाले क्लाउड्स जो होते हैं वो क्यूमुलस होते हैं एंड दी हाइयर मोस्ट क्लाउड इज सिरस. ठीक है. सो सबसे पहला फैक्ट हमने ये देखा कि द क्लाउड्स आर रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो होते हैं ये रेन इंटेंसिव क्लाउड्स होते हैं एंड ये रेन प्रोड्यूस करते हैं. सिर्रो मैंने बताया था आपको, सिरस जो हैं वो हाईएस्ट क्लाउड्स होते हैं तो यहाँ पे ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड से रिलेटेड है. नाउ सदर्न हेमिस्फीयर में एक फेनोमेनन है विंड्स का या वेस्टर्लीज आप बोल सकते हैं इसको. तो ये रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s. दिस इज रिलेटेड टू द विंड पैटर्न्स. ठीक है. नाउ फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो सेल्वाज आर द ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ये ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं. जो हमने ग्रासलैंड का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था दिस सेल्वाज आर देयर इन द एरिया ऑफ ब्राज़ील. अमेजन फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पे ये सेल्वाज फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में होते हैं क्योंकि इक्वेटर है. सो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हमारी बारिश होती है एंड वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. नाउ ताइगा फॉरेस्ट आर देयर इन टेम्परेट रीजन. टेम्परेट रीजन मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में होते हैं. नाउ मानसून फॉरेस्ट टीक एंड साल दीज आर अ टाइप ऑफ मानसून फॉरेस्ट. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की मैं बात करूँ तो महागनी, रोजवुड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट.
मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्लम एंड ऑलिव। कोनीफेरस फॉरेस्ट, पाइल एंड स्प्रूस। एपीफाइट्स जो हैं वो इक्वेटर पे मिलते हैं, एंड दीज एपीफाइट्स दे ग्रो ऑन दी अदर प्लांट्स। ठीक है, जैसे बेल होता है ना, बेल सहारे के साथ ऐसा अगर उसको सपोर्ट मिले तो वो ऊपर की तरफ निकलता है। सो दीज आर एपीफाइट्स। Acacia, this is a desert plant and it is found in the Sahara region. Baobab is found in the Savannah region. Cedars are found in the Mediterranean region. Also, Mediterranean region is known for viticulture, and viticulture हमारा क्या होता है? This is related to grapes. ठीक है, now soils देख लेते हैं। जो पोर्टजोल होती है, these are related to cold temperature. Laterite soil is related to hot and humid region. एंड ये महाराष्ट्र, गुजरात इन सम एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हमारे इंडिया में ये लैटेराइट सॉइल होती है। लैटेराइट सॉइल इज एब्सोल्युटली फिट फॉर ग्रोइंग कैश्यू नट एंड टेपियोका। ठीक है, साबूदाना जिसको बोलते हैं। नाउ व्हाट इज डेविस? सो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का सेकेंड रैंक है, बोथ व्हीट में भी एंड राइस में भी। शुगर केन की लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज़ देयर इन ब्राज़ील। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में लार्जेस्ट जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। नो, यूक्रेन प्रोड्यूसेस शुगर फ्रॉम शुगर बीट्स। कोकोनट की लार्जेस्ट प्रोडक्शन इंडोनेशिया। टोबैको का चाइना है, जवार का चाइना है, सोयाबीन का यूएसए है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट इज़ रॉ सिल्क में चाइना, रबर मलेशिया, चाइना में टी, ऑलिव का इटली है, नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंडनट इज़ ब्राज़ील। सैफरन जो है वो हमारा ईरान का है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मिनरल्स, चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, एंड कोल हमारा सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। कॉपर चाइल में होता है, एंड इन अफ्रीका कॉपर का लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है वो जाम्बिया में होता है। नेक्स्ट इज़ गोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया की जो यहाँ पे हमारी कूल ग्रेडी माइन है, कूल गार्डी माइन है, वहाँ पे ये होता है। एग्जाम्पल है हमारा जोहानिसबर्ग। सिल्वर इज़ देयर इन मेक्सिको, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्युमिनियम ओर की, एल्युमिनियम ओर बॉक्साइट है, एल्युमिनियम हमारा चाइना में होता है। टिन हमारा इंडोनेशिया, एंड यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ कजाकिस्तान। ठीक है, नाउ कुछ पार्ट हमारा रह गया है, वो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ अर्थक्वेक के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स किसने दिया था? तो ये 1960 में दिया था बाय विल्सन, मॉर्गन, पैट्रिक मैकेंजी एंड हैरी हेस। सो जनरली दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज गिवन बाय हैरी हेस। ठीक है, एंड दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज रिलेटेड टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। नो, रिंग ऑफ फायर की मैं बात करूं तो पैसिफिक ओशन, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ये सारे के सारे जो हैं ये पैसिफिक ओशन में होते हैं। एंड लार्जेस्ट एक्टिविटी रिगार्डिंग अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज इज देयर इन द एरिया ऑफ रिंग ऑफ फायर। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय मर्सली स्केल, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। इसके अलावा मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। इसके अलावा अगर मैं अर्थक्वेक की मैं बात करूं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू पी वेव्स। दो टाइप्स की वेव्स होती है, और एक होती हैं एस वेव्स। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस मतलब सेकेंडरी वेव्स। नाउ द पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, वेयर एज एस वेव की मैं बात करूँ तो ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती है। तो हम जैसे कि हमें पता है कि क्रस्ट जो है हमारा, दैट इज़ अपर पोर्शन, अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड। मेंटल में हमारा जो है वो लावा है, एंड इट इज़ लिक्विड एंड गैसेस का वो मेडअप होता है। सो दिस पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एवरी लेयर ऑफ द अर्थ, वेयर एज एस वेव्स जो है वो सिर्फ क्रस्ट पे ट्रैवल करेगी, बिकॉज इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम। ठीक है, नाउ सो 105 किलोमीटर, 105 डिग्री के बाद जितना भी एरिया है वो शेडो जोन हो जाता है इस वेव में, एंड 105 टू 145 डिग्री का जो एरिया है वो एंगल है वो हमारा शेडो जोन हो जाता है पी वेव्स में। ठीक है, नाउ पी वेव्स दिस ट्रैवल इन
इसका जो डायरेक्शन होता है, दीज आर पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेयर एज परपेंडिकुलर होता है हमारा एस वेव्स, ठीक है। ऑल्सो द पी वेव्स आर द फर्स्ट वेव टू अराइव। ऑल्सो अगर मैं डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव बोलूँ तो वो एल वेव्स होती हैं, ठीक है। एल वेव्स आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अब अगर आगे देखते हैं तो दिस इज़ अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। नाउ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। अगर मैं करेक्ट सीक्वेंस की बात करूँ कॉन्टिनेंट की, तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट इज़ अफ्रीका, देन इज़ नॉर्थ अमेरिका, देन इज़ यूरोप। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका हैज़ द हाईएस्ट मीन एलिवेशन। अगर मैं लोएस्ट मीन एलिवेशन की बात करूँ तो वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया का है। नाउ ये हमारा sea floor spreading theory is has been given by Harry Hess. Theory of continental drift has been given by Alfred Wegener. The color of the star it determines, ये बताता है कि टेम्परेचर क्या है हमारे स्टार का। What is the Chandrasekhar limit? So it is the limit beyond which stars suffer the internal collapse. If I talk about black hole, firstly the black hole was made known by S Chandrasekhar एंड इस ब्लैक होल में क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं अब ब्रिटल स्टार इज़ नॉट फाउंड इन स्पेस। ब्रिटल स्टार जो है वो स्पेस से रिलेटेड नहीं होता। नेक्स्ट इज कॉपरनिकस की मैं बात करूँ तो कॉपरनिकस प्रोपाउंडेड दैट सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, गैनीमेड इज द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। गैलीलियो गिव दी हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर एनर्जी जो है दिस इज़ ड्यू टू दी न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको फ्यूजन से कंफ्यूज मत करना। सोलर एनर्जी इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। सोलर एक्लिप्स जो होता है वो न्यू मून डे पे होता है, दैट इज़ अमावस्या। एंड इन सोलर एक्लिप्स जो मून है इट कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। नाउ दिस पेरीहीलियन इज़ अ पॉइंट वेयर अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन। जनवरी 4 को ये होता है। एपेहीलियन में अर्थ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड इट हैपन्स ऑन जुलाई 4। इसी हिसाब से पेरीजी इज़ द टाइम व्हेन द अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू मून एंड एपोजी के टाइम पे जो हमारा मून है, अर्थ है, दैट इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम द मून। नाउ दो प्लैनेट्स हैं हमारे ऐसे जो जिनके पास खुद की सैटेलाइट नहीं है। ये पहला तो हमारा मरकरी है और दूसरा वीनस है। नाउ एरिस्टोटल वॉज फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ वॉज स्फेरिकल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ एलिमेंट्स जो है अर्थ के क्रस्ट में कैसे होते हैं, तो इसके लिए एक निमोनिक O साइन CS के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। O से ऑक्सीजन, S से सिलिकन, A से एल्युमिनियम, I से आयरन, ठीक है। देन हमारा आता है CO2 एंड देन हमारा आता है सोडियम। नाउ इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ कितना होता है, ये होता है 40,000 किलोमीटर। नाउ इंक्लिनेशन क्या है अर्थ की हमारी, दिस इज 23.5 डिग्री फ्रॉम द इलिप्टिकल एक्सिस। नाउ इनर लेयर ऑफ द अर्थ, देखो 3 लेयर्स होती हैं, एक तो क्रस्ट होती है, देन देयर इज द मेंटल विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सियाल, दैट इज सिलिकन एंड एल्युमिनियम, एंड लास्ट वन इज सीमा, ठीक है। सीमा मतलब सिलिकन एंड मैंगनीज। तो सबसे जो इनर लेयर होती है वो दैट इज़ मेड अप ऑफ नीफे, दैट इज़ निकल एंड फेरम। सियाल मतलब सिलिकन एंड एल्युमिनियम अपर लेयर में होता है, एंड सीमा दैट इज सिलिकन एंड मैग्नीशियम, ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट में होता है। गैलीलियो डिस्कवर्ड द मून्स ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। ऑल्सो एस्टेरॉइड जो हैं वो हमारे मार्स एंड जुपिटर के बीच में होते हैं। देन कॉमेट्स कहाँ होते हैं, कॉमेट्स आर फाउंड इन द क्यूपियर बेल्ट। अब ये क्यूपियर बेल्ट कहाँ है, सो बियॉन्ड नेपच्यून जितना भी एरिया है दैट इज़ नोन एज द क्यूपियर बेल्ट, एंड दीज कॉमेट्स आर फाउंड इन द क्यूपियर बेल्ट। कॉमेट्स में एक टेल होती है, एंड ये टेल कब फॉर्म होती है, जब ये कॉमेट सन के पास जाते हैं तो अ टेल इज फॉर्म, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। नहीं, व्हाट आर द कॉमेट्स, द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एक्सर्ट्स अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा प्राइम मेरिडियन होता है, एंड ये दोनों के दोनों अटलांटिक ओशन से पास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
इक्वेटर जो है इट पासेस थ्रू 13 कंट्रीज, दैट इज़ ब्राज़ील, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटर, गेबन, इंडोनेशिया, केनिया, किरिबाती, कॉन्गो, साओ टोम, सोमालिया, युगांडा एंड मालदीव। ये 13 कंट्रीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा 1 डिग्री अमाउंट्स टू 4 मिनट्स। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ ये प्राइम मेरिडियन है, तो जितना हम इसके ईस्ट जाएंगे वी विल गेन टाइम, एंड जितना हम वेस्ट जाएंगे वी विल लूज टाइम। ठीक है, तो 1 डिग्री अगर हम जाते हैं ईस्ट या वेस्ट तो 4 मिनट्स का नेट इफेक्ट होता है। सो अगर मान लो हम 90 डिग्री ईस्ट गए तो 90 इंटू 4 दैट इज़ 360 मिनट्स, इट मीन्स 6 आवर्स हम गेन करेंगे। तभी आपने देखा होगा इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, दैट इज़ वाई अगर हम GMT करते हैं, GMT का जो भी टाइम होता है 00 आवर अगर मान लो GMT पे है, अगर हम IST देखेंगे दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ प्लस 5:30। इसका मतलब क्या कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5:30 ऐड हो जाता है, 5 आवर एंड 30 मिनट्स। टोटल लेंथ ऑफ अर्थ इक्वेटर इज़ 40,000 किलोमीटर। ITCZ इज़ लोकेटेड एट इक्वेटर। कोकोस प्लेट जो होती हैं वो हमारी सेंट्रल अमेरिकन पैसिफिक प्लेट पे है। फोल्डिंग जो प्रोसेस होता है इट इज़ रिजल्ट ऑफ ओरोजेनिक फोर्सेस। ओरोजेनिक का मतलब क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू माउंटेन मेकिंग फोर्सेस। दीज ओरोजेनिक फोर्सेस leads to the creation of mountains. Now the sedimentary rocks are formed at the earth's surface by the hydrological system. Sedimentary rocks जो है उसमें फॉसिल होता है एंड ये लेयर्स में ऑकर होता है। नो ग्रेनाइट में किसी तरह का फॉसिल नहीं होता है, तो फॉसिल होता कौन सी रॉक में, ये होता है सेडिमेंट्री रॉक, जो कि फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोस्ट अबंडेंट गैस फ्रॉम वॉल्केनोज। जब भी वॉल्केनो एरप्शन होता है तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट गैस कौन सी है, तो वो हमारी है CO2 एंड SO2। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लूटोनिक रॉक्स, ये रॉक्स जो हैं दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। अब दीज डिफरेंट माउंटेन्स या वॉल्केनोज की मैं बात करूँ तो माउंट एटना ये इटली में है, माउंट सेंट हेलेंस इज़ इन USA, माउंट लाओ इज़ इन हवाई, एकोनाग्वा माउंटेन ये अर्जेंटीना में है, कोटापैक्सी इज़ इन इक्वेडर। इसके अलावा माउंट एटना इज़ इन सिसिली, स्ट्रोम्बाली इज़ ऑल्सो इन इटली। कोटापैक्सी इज़ इन इक्वेडर, किलुआ माउंटेन इज़ देयर इन USA हवाई, माउंट एरेबस इज़ इन अंटार्कटिका एंड अंटार्कटिका में रॉस आइलैंड भी है। माउंट वेसिवस इज़ इन इटली, माउंट एल्ब्रस इज़ इन ईरान, माउंट मेरापी हमारा इंडोनेशिया में है, माउंट सब्यांका इज़ इन पेरू, माउंट रेनियर हमारा USA में है, माउंट एपो हमारा फिलीपींस में है। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे माउंटेन्स की बात करता हूँ जो हमारे इंडिया में हैं, वो भी अंडमान में। ठीक है, सबसे पहला तो है माउंट डियाब्लो, इसके अलावा सैडल पीक हमारे नॉर्दर्न अंडमान में है। इसके अलावा हमारा माउंट थुलियर एंड माउंट कयोब, ये कुछ माउंटेन्स हैं, दीज आर देयर इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ना अर्थक्वेक के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँ तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है इंडिया में, तो वो है हमारा नर्मदा, वो रिवर है हमारी तापी एंड माही। ये दीज आर सम ऑफ द रिवर्स दैट आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर की, अब एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है, वो रिवर्स जो कि हिमालयज़ या माउंटेन्स के फॉर्म होने से पहले फ्लो कर रही हैं। तो सम ऑफ द एंटीसीडेंट रिवर इज़ कोसी, इंडस भी एक एंटीसीडेंट रिवर है एंड ब्रह्मपुत्र भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऐसी रिवर्स की जो कि जिनका ओरिजिन इंडिया के बाहर है या तिब्बत में है, तो इनका नाम आप ध्यान रखना, ये एक इंडस है, ब्रह्मपुत्र है एंड सतलज है। ये कुछ रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन इंडिया के बाहर तिब्बत मानसरोवर में है। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट चिनाब इज़ फाउंड बाय द टू स्ट्रीम दैट इज़ चंद्रा एंड भागा से चिनाब फॉर्म होती है एंड इसका ओरिजिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है।
ब्यास रिवर का भी जो ओरिजिन है वो हिमाचल में है, ठीक है। झेलम का जो ओरिजिन है ये हमारा JNK में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नौ हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ से जो 5 रिवर्स है, दैट इज़ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी फ्लो करती हैं। यमुना भी फ्लो करती हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब मैं कुछ अगर पासेस की बात करूं तो माना पास, माना, नीति, लिपुलेख, ये हमारे इंडिया एंड नेपाल के बीच में है। इफ़ आई टॉक अबाउट पासेस इन सिक्किम, तो एक तो नाथुला का आप नाम याद रखोगे, एक है जेलेपला। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट पासेस इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें आपको याद रखना है बमला, बोमडीला, सेला और शिपकीला। एक शिंकुला पास अभी न्यूज़ में है, ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो आई हैव ट्राइड कि मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ जो कि ज्योग्राफी में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, वो मैं आपकी 1 घंटे में कवर करा सकूँ। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी या ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो जिसमें मैं इंडिया को प्रॉपर्ली कवर कर लूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना ताकि मैं वो वीडियो बनाऊँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा इफ़ आई विल मेक दैट वीडियो और नॉट। सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक और बात है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है थ्रू MCQs, एंड स्पेक्ट्रम का एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे। स्पेक्ट्रम आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड थ्रू MCQs, तो अगर आप वो देखना चाहो तो आप वो देख सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।